السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لایا ہوں آپ کے لیے زبردست مناظرہ دیوبندی اور اہل حدیث مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ علامہ قاری کفایت اللہ صاحب کا جو ہے نا مناظرہ ہے۔ آپ نے وہ پوری ویڈیو سننی ہے، وہ طلاق کے موضوع پر ہے، 3 طلاق ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاق دینے پر۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ مناظرہ۔ آپ سن لیں۔ پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں، کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، آپ نے کہا 1۔ کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے، آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں۔ اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے، جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں؟ کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے، تو پھر نبی کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی۔ آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے۔ ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے، پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو، بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا۔ تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علی الاطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3۔ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے، تو آپ صاف صاف بولو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے۔ شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے، یہی حدیث پیش کر کے۔ آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو، آدھے سنی بن رہے ہو، بات وہی کر رہے ہو، نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ۔ ابے بھائی صاحب، یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہو۔ یہاں پہ جو اعتراض کیا نا، یہ ان کا اعتراض نہیں ہے، قاضی صاحب وغیرہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اکٹھی کا لفظ کہاں ہے، یعنی 3 طلاق اکٹھی کا لفظ کہاں ہے، آپ نے ترجمہ کیوں کر دیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترجمہ خود احناف ان کے گھرانے کے لوگوں نے کیا ہے۔ میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے نا شریعت یا جہالت، حقانی صاحب کی کتاب ہے، جو دیوبندی تھے، بلکہ وہ دیوبندیوں کی حمایت میں بہت ساری کتابیں لکھیں۔ ان کے الفاظ ہے شریعت یا جہالت، ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور 2 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک خیال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے حنفی شخص نے، آپ کے گھرانے کے لوگوں نے یہ ایک ساتھ ترجمہ کہاں سے لیا؟ اگر یہ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں تو ساری لعنتیں پہلے اپنے گھر پہ برساؤ نا، کہ ان لوگوں نے بھی یہ باقاعدہ ترجمہ کر رکھا ہے، ایسے بریلیوں نے بھی یہ ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو دیوبندی اور بریلوی حضرات، ان لوگوں نے بھی باقاعدہ یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ اس سے اکٹھی جو ہے مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھائی اجماع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں 3 طلاق سے مراد اکٹھی 3 طلاق ہے، اس کے برخلاف مفتی صاحب آپ کے علاوہ، مقلدین کے علاوہ، آپ جیسے لوگ علاوہ، اس 1400 سال میں کس نے یہ کہا ہے کہ 3 طلاق مراد نہیں ہے ایک ساتھ؟ ہاں، یہ کس نے یہ دعویٰ کیا؟ یعنی اس مفہوم پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے۔ اور ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مطلب ہے کہ الگ الگ طلاق دی جاتی تھی تو بھی نبی کے دور میں ایک شمار ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی نے طلاق دیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی نے طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، اور اس کے بعد میں پھر اس بندے نے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا اور رجوع کر لیا، اور پھر تیسری طلاق دیا، تو کیا یہ طلاق ایک شمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ کیا پوری دنیا میں کسی بھی عالم کا یہ موقف ہے، یہ قول ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز شمار ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو حقیقت میں جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام ہے، چاہے اکٹھی دے چاہے الگ الگ دے، سب شامل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ اگر الگ الگ طلاق دیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ خود اجماع کو باہر کر رہے ہیں، پوری امت میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اگر الگ الگ طلاق دیا اور سنت کے مطابق طلاق دیا تو بھی وہ ایک شمار ہوگی، ایسا تو کوئی قول موجود نہیں ہے، اسلام کی فقہی تاریخ میں کوئی قول موجود نہیں ہے۔ تو ساری امت نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ یہ اکٹھی 3 طلاق جو ہے مراد ہے، اور اس کا پورا حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے، حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی گنجائش تھی، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گنجائش ختم کر رہے ہیں۔ کیوں ختم کر رہے ہیں وہ آگے ہم اس میں بات کریں گے۔ تو حدیث کا پورا بھی سیاق یہ کہتا ہے کہ پہلے جو چیز تھی اب وہ چیز جو ہے ختم کی جا رہی ہے، وہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے، حدیث کا ایک مطلب بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے۔ تو جب یہ اس کو لے آ کے غیر مدخولہ پہ فٹ کرتے ہیں نا، تو خود اس کو جو ہے اکٹھی 3 طلاق مراد لیتے ہیں۔ بھائی جب اس کو آپ کو غیر مدخولہ، وہ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث ہے، ایک مردود روایت ہے، میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں اس کی سند پہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بات کی ہے، کافی لمبی بحث ہے۔ اس حدیث کو لا کے یہ اور اس کا جو دوست ہے انجینئر علی مرزا، یہ دونوں مل کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ غیر مدخولہ، یعنی اپنے مطلب کی بات آتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب، یعنی بہت سارے جو جوابات دیتے ہیں شذوذ فلاں فلاں تک ضعیف بھی کہے جاتے ہیں، اسی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے۔ جب یہ جس وقت یہ اس کو غیر مدخولہ سے متعلق مانتے ہیں، اس وقت یہ خود مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد جو ہے اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے۔ اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث میں فیصلہ لیا، ڈیسیژن لیا، اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا نا، تو اس کے تعلق سے جتنے بھی آثار ہیں آپ دیکھیں گے، ان آثار میں بھی یہی ملتا ہے، ہر جگہ وہی ملتا ہے کہ اکٹھی آدمی نے بندے نے جو ہے 3 طلاق دے دیا۔ جیسے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے طلقت کے عدد نجوم، آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس کے برابر جو ہے تجھ کو جو ہے 3 طلاق۔ تو اس طرح کے سارے آثار بھی ملتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا مطلب ہے۔ مسلم احمد کی روایت بھی جس میں فی مجلس واحد کی صراحت بھی ہے کہ ایک مجلس میں، یعنی وہ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو حدیث کے راوی ہیں، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں، اور یہ کوئی مطلب اگر کوئی اپنی فہم لے نا، اپنے من سے کوئی بات لائے، تو یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اپنی بات حدیث میں کیوں ڈالو، لیکن وہ دوسری حدیث میں ہی وہ بات ہے۔ جیسے قرآنی آیات میں 2 آیات ہوں، لیکن ایک جگہ کوئی وضاحت آ گئی اور وہ آیت میں آئی، اور دوسری جگہ بھی بات کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا، تو یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے کوئی مفہوم اس میں شامل کر لیا، وہ مفہوم آیت ہی کا بیان کرتا ہے۔ یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے۔ اگر ایک حدیث کی تشریح میں، حالانکہ حدیث کا سیاق بھی کافی ہے، لیکن ایک حدیث کی تشریح میں دوسری واضح حدیث آ گئی فی مجلس واحد، تو وہ حدیث کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 طلاق دی گئی تھی، تو اس میں تو پوری وضاحت ہے نا
वो भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की हदीस है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये तो कह रहे हैं ना कि नबी के दौर में ऐसा होता था, नबी के दौर के एक एग्जांपल भी उन्होंने बता दिया कि कैसा होता था। तो ये बहुत ही वाज़ेह दलाइल मौजूद है कि उससे मुराद क्या है। सियाक भी कहता है, हदीस की भी शरह करती है, उम्मत का इजमा इत्तफाकी फहम भी है, सब कुछ है, इजमा भी है, हदीस भी है, सब कुछ है, और इनके घर का तर्जुमा भी है। फिर क्या प्रॉब्लम, फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? और अगर इस तरह से हर परस्ती की बात की जाए, जो कुरान में है ना, 2 तलाक के बाद जो तीसरी तलाक का जिक्र है, तो आप तर्जुमा क्यों कहते हो कि कुरान कहता है कि 3 तलाक दे दिया तो उसके बाद जो है आप रुजू नहीं कर सकते? वहां क्या 3 का लफ्ज है? उसमें तो ये है ना 2 तलाक का जिक्र, उसके बाद कि अब अगर किसी ने तलाक दिया, अब अगर किसी ने तलाक दिया, अब वहां कोई जिक्र नहीं 3 बताओ, इसमें किधर 3 का लफ्ज है? वो आयत अलग है, तीसरी तलाक की जहां बात हो रही है वो अलग आयत है, लेकिन उसका तर्जुमा करते तो ये कहा जाता ना कि अब अगर किसी ने तलाक दे दिया, किसी ने तीसरी तलाक दे दिया, जो है अब वो रुजू नहीं कर सकता है, किससे खत्म हो गया। तो वहां अगर किसी ने ये मफहूम बयान कर दिया तो क्या कहेंगे कि उसने तहरीक किया कुरान किया? हरगिज़ नहीं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो तर्जुमे पर इन्होंने नकल किया, तो पहले अपने घर की खबर है, आपके घर वालों ने भी यही तर्जुमा किया और यही सही। हजरत उमर ने क्या नाफिज कर दिया 3 को 3? इसका जवाब ये है कि ऐसी ही हदीस मुता के बारे में भी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, उमर ने क्या किया? मुता पर पाबंदी लगा दी। हम कहते हैं जो इसका जवाब है वही उसका जवाब। क्या जवाब है इसका? भाई मुता के नबी किया है, नबी के ऑर्डर से नहीं किया मुता किसी ने, माज़अल्लाह हराम हो गया था पहले ही, बहुत से लोगों को इल्म नहीं था इसलिए उन्होंने किया, उनको नहीं पता था हराम है। ऐसे ही सही हदीस से ये बात साबित है कि ज़माने जाहिलियत में जब कोई इकट्ठी तलाकें देता था, चाहे एक या 10 तलाकें देते, वो एक ही समझी जाती थी। तो जब कुरान की आयतें नाजिल हुई तलाक मर्रतान, कुरान ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया, जैसे मुता को मनसूख किया गया, इस हुक्म को भी मनसूख किया गया। ऐन मुमकिन है बहुत से सहाबा को मालूम ना हो, तो वो इकट्ठी 3 को 3 समझते रहे। अगर आप ये हदीस की तशरीह नहीं करते, बुखारी खलील साहब मेरे टूटा पॉइंट सवाल का जवाब तो दाएं में घुमाना नहीं बात को, जो घुमाते बहुत हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हजरत उमर ने अल्लाह के हलाल को हराम किया है। उन्होंने इससे पहले जो इतराज किया है बड़ा मशहूर इतराज है और ये बार बार पेश करते हैं कि सही मुस्लिम में मुता के बारे में भी ऐसी हदीस है, इसका क्या जवाब है? मुफ्ती साहब पूछते हैं इसका क्या जवाब? इसका 2 जवाब सुने। पहली बात यह है कि तलाक से मुतालिक जो रवायत है कि अहद रसालत में 3 तलाक एक शुमार होती थी, अहद रसालत में 3 तलाक एक शुमार होती थी, हम वही तर्जुमा करते हैं जो उसमें है रवायत में, अहद रसालत में 3 तलाक एक शुमार होती थी। और आगे हदीस में फौरन क्या है कि अहद सिद्दीकी में भी 3 तलाक एक शुमार होती थी। इस रवायत में कहीं भी ऐसा नहीं है, ना किसी और रवायत में है कि ये हुक्म मनसूख हुआ, समझ रहे? यानी अहद रसालत में 3 तलाक, वो जो ज़माने जाहिलियत की बात बीच में है ना, वो ज़माने जाहिलियत की बात तो अलग ही है, इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम ने जो लॉ दिया, जो कानून दिया कि 3 तलाक जो है एक शुमार होगी, इकट्ठी किसी ने दे दिया तो एक शुमार होगी। तो ये जो बात है कि 3 तलाक को एक शुमार होना, इसके बरखिलाफ कोई नासिख मौजूद नहीं है। मुफ्ती साहब की हम बात मान लेते हैं कि मुता वाली बात, तलाक वाली बात दोनों एक तरह से है, लेकिन दोनों में 2 फर्क है। अगर ये 2 फर्क ना होता ना तो हम कहते दोनों एक तरह से। पहला फर्क ये है कि तलाक वाली हदीस का कोई नासिख नहीं है, जबकि मुता वाली हदीस का नासिख मौजूद है। सही और सही हदीस मौजूद है कि नस्ख की दलील मौजूद है, जबकि 3 तलाक एक होती थी, इस हुक्म को मनसूख किया गया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो 3 तलाक एक शुमार होती थी, इस हुक्म को मनसूख किया गया, इसकी कोई नस कोई दलील मौजूद नहीं है कि यह मनसूख किया गया। जबकि मुता के बारे में नासिख मौजूद है, मुफ्ती साहब इनकार नहीं कर सकते। तो भाई जिसके बारे में नासिख मौजूद है और जिसके बारे में नासिख मौजूद नहीं है, दोनों को आप एक जैसा कैसे कर सकते हैं? तो तलाक के बारे में नासिख मौजूद नहीं है, इसलिए वो हुक्म बरकरार रहेगा, और मुता के बारे में चूंकि नासिख मौजूद है, इसलिए वो हुक्म बरकरार नहीं रहेगा। समझ रहे? पहली बात। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा जवाब ये है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तलाक के बारे में जो कानून बनाया था कि किसी ने 3 तलाक दे दिया तो हम उसका किस्सा खत्म कर देंगे, ये उनका अपना सियासी इज्तिहाद था। ये फैसला उनका किसी नस की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि मुस्लिम में बाकायदा मेंशन है कि इसमें गुंजाइश थी। वो नस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुंजाइश थी, लेकिन ये खत्म की जा रही गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने खत्म की। इसमें जो एतराज है ना मुफ्ती साहब का कि वो कौन होते खत्म करने वाले, आगे उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलाक का जो लॉ लाए, कानून लेकर आए, वो उनका सियासी इज्तिहाद था। लेकिन मुता के बारे में जो मना किया रोका, ये उनका इज्तिहाद नहीं था, ये नस थी। यानी वो हदीस की रोशनी में कहा कि ये शरीयत में गुंजाइश ही नहीं है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब हदीस को लेकर, शरीयत को लेकर, ये उनका शरई फतवा था, बल्कि शरई फतवा भी नहीं, हदीस की इत्तिबा थी, उनका ये इत्तिबा था, कोई इज्तिहादी फतवा नहीं था, ये कोई इज्तिहाद था ही नहीं। यानी मुता से जो मना किया, ये उमर रजी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद था ही नहीं, न सियासी न फिक़ही, किसी लिहाज से। ये तो डायरेक्ट हदीस की इत्तिबा है, हदीस की पैरवी है। जब जो है हदीस मौजूद है कि मुता जो है बंद हो गया है, उसको मना कर दिया गया, तो अब इस पे अमल नहीं होगा। तो जो नाफिज किया वो हदीस पर जो है अमल करने पर उम्मत को लगाया, जो लोग हदीस से वाकिफ नहीं थे। तो ये दूसरा फर्क क्या है कि मुता के बारे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कोई इज्तिहाद नहीं कर रहे, बल्कि हदीस पे ला रहे हैं, और मुता के बारे में हदीस मेंशन नहीं कर रहे हैं। चुनांचे इब्न माजा की रिवायत में इजाजत थी, सुम्मा हर्रमा, फिर इसे हराम कर दिया गया। तो आप देखिए उसमें उमर रजी अल्लाह तआला के जो अल्फाज है कि ये मुता हलाल था और हराम कर दिया गया, तो हलाल और हराम ये दोनों मंसूब करें शरीयत की तरफ, शरीयत में ऐसे ही है। लेकिन तलाक के बारे में वो इज्तिहाद करके नहीं, शरीयत में तो है 3 की गुंजाइश की 1 होगी, लेकिन ये गुंजाइश खत्म की जा रही है। हम इसको नाफिज कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इसमें जल्दबाजी की वजह भी बता रहे हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं लोग, तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तलाक दे रहे हैं। तो मुफ्ती साहब इसका 2 जवाब है, मैं फिर से शॉर्ट में दोहरा देता हूँ। पहला जवाब ये है कि तलाक की हदीस का कोई नासिख मौजूद नहीं है, मुता की हदीस का नासिख मौजूद है, ये दोनों में फर्क है। दूसरा जवाब ये है कि तलाक वाले केस में उमर रजी अल्लाह तआला का जो फैसला था वो इज्तिहादी सियासी इज्तिहाद था, लेकिन मुता के बारे में उमर रजी अल्लाह का जो फैसला था वो इज्तिहाद पर मबनी नहीं था, वो डायरेक्ट नस पर मबनी था। इसका मतलब ये निकलता है कि तलाक से मुतल्लिक शरीयत का असल जो हुक्म है वो कुछ और है और वो मनसूख नहीं हुआ है, लेकिन मुता के बारे में जो हुक्म है वो मनसूख हो चुका है। इसलिए उमर रजी अल्लाह तआला ने जो मुता के बारे में फैसला किया वो नस पर उम्मत को लाया है, वो क़यामत तक वैसे ही रहेगा। लेकिन तलाक के बारे में उमर रजी अल्लाह ने जो इज्तिहाद किया वो सियासी, पॉलिटिकल, सियासी और एक सरकारी फरमान था, इसलिए वो शरीयत की हैसियत नहीं रखता, वो एक कानून की उसकी हैसियत है, शरई हैसियत नहीं, कानूनी हैसियत है। जब तक वो कानून है, जब तक वो लॉ है, ठीक है। तो ये दोनों में जो है फर्क है। अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हजरत उमर ने अल्लाह के हलाल को हराम किया है। समझते हो कि नबी के हुक्म पे माज़ अल्लाह ऐसा कोई नहीं है। नबी के हुक्म पे, नबी के दौर में तो 3 तलाक़ें कितनी होती थी? 3 होती थी।
यानी आपकी हदीस के मुताबिक नबी के दौर में 3 तलाकें कितनी होती थी? एक। मर्द को रुजू का हक था, हजरत उमर ने सियासतन पाबंदी लगा दी ताकि लोग तलाकें ना दें और 3 को 3 नाफिज किया। तो ये सियासत है या दीन में तहरीफ है? इसका जवाब चाहिए मुझे। सियासी फैसले में बीवियां हलाल हराम नहीं होती हैं, समझ रहे? ये इनका फंडा है, इन लोगों का, मुखल्लिदीन का। ये बार बार कहते हैं, जज्बाती अंदाज में बात करते हैं, कहते हैं कि सियासी फैसले में हलाल को हराम कैसे कर दिया? अरे मुफ्ती साहब, सजा का मतलब क्या होता है बताएं? जब कोई हाकिम किसी को सजा देता है उसका मतलब क्या? मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब, आपने अगर कोई जुर्म किया और उसके बाद आपको कैद होगी, चलो 1 साल के लिए कैद होगी, उम्र कैद होगी, तो उम्र कैद में क्या होगा? आप अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते, आप अपने खुद के घर में नहीं रह सकते जिसके आप मालिक हैं, आप अपने घर का खाना नहीं खा सकते जो आपके लिए हलाल है, आप अपनी बीवी से ताल्लुक नहीं बना सकते, घर पे नहीं आ सकते, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीजों पर बंदिश लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर आपको कोई सजा दी जाए और कैद कर दिया जाए तो आपको कैद करने के बाद जो भी चीजें जायज थी पाबंदी लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी? आप मुफ्ती साहब, अगर आपको सजा दी जाए और आपको कैद कर दिया, आप बोले अरे तुम लोग कौन होते हो हमारी बीवी को हमारे लिए हराम करने वाले, तुम लोग कौन होते हो हमारे घर को हमारे लिए हराम करने वाले, अल्लाह ने मेरे घर को मेरे लिए हलाल किया, अल्लाह ने मेरी बीवी को मेरे लिए हलाल किया, अल्लाह ने मेरे बच्चों से मिलना मेरे लिए हलाल किया, तुम कौन होते हो? मैं नहीं मानता इस कैद को। तो कहेंगे पागल हो गया क्या, बेवकूफ हो गया? आप समझ रहे हैं? सजा का मतलब यही होता है कि जो चीजें हलाल है आपके लिए उनसे आपको महरूम कर दिया जाए, वो सहूलत छीन ली जाए आपसे, तभी तो सजा बनेगी। वरना भैया हर मुजरिम खड़ा होकर बोल सकता है, किसी को आप कैद की सजा दे ही नहीं सकते। कैद की सजा देने से हर मुजरिम बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा मेरा घर मेरे लिए हलाल है, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है, तू कौन होता रोकने वाला? भाई मुझे तो शरीयत एतबार से तू कैद में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कैद में डालने का मतलब मैं अपने बाल बच्चों के साथ रह नहीं सकता। जो अल्लाह ने हलाल किया तू कौन होता हराम करने वाला? तो मुफ्ती साहब ये बताएं कि जो भी हाकिम किसी को कैद की सजा सुनाता है, क्या वो शरीयत में तहरीफ कर रहा है? क्या वो अल्लाह के हलाल करदा उमूर को हराम कर रहा है? नहीं, हराम नहीं कर रहा मेरे भाई। तो सजा का मतलब मुफ्ती साहब समझो, सजा का मतलब होता है कि जायज चीजों से आपको अलग कर देना, जो सहूलियात है, जो जायज है आपको उससे आपको महरूम कर देना, तभी तो आपके लिए सजा होगी, वरना सजा कैसे होगी? तो ये सजा का मतलब समझे आप, सजा का मतलब समझे। तो खुलासा ये है मुफ्ती साहब, आपके दिमाग में ये बात नहीं समझ आ रही है कि आप इसको सजा को कह रहे हैं कि हलाल को हराम। अगर उन्होंने शरई फतवा दिया होता, सजा की बात नहीं होती, कोई लॉ नहीं होता, कानून नहीं होता, ऐसे किसी को ऐसा बोल दिया होता बगैर सजा के, तो आप कह सकते थे ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वो कानून बना रहे हैं, कानून का मतलब ही होता है कि जो चीज आपके लिए जायज है वो चीज से आपको महरूम कर दिया, सजा का मतलब ही होता है। इसलिए ये कहना कि ये तहरीफ है, गलत है। इन्होंने कहा कि सियासतन बीवी को हलाल हराम नहीं किया सकता, ये सियासतन नहीं, ये बतौर सजा है, ये बतौर सजा है। और जो कानून बनाएगा उसको कानून को आप सियासी बोल सकते हैं। तो सियासी जब कानून बनता है तो उसमें हलाल चीजों से आपको दूर किया था, लेकिन उसको हराम नहीं किया था। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा है कि बीवी आपके लिए हराम हो गई। मुफ्ती साहब को हमारा चैलेंज है, जाओ, बहुत चैलेंज करते हो आप ना, कि एक कट्ठा दिखाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाओ सारी किताबें छान मारो, मुझे एक रिवायत लेकर आओ कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था या कहा हो कि अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो 3 तलाक देने के बाद बीवी हराम। ये आपको चैलेंज है क़यामत तक। मुफ्ती साहब आप जाके मुझे एक रिवायत निकाल के बताओ, आप जाओ छान मारो सारी रिवायतें, एक रिवायत निकाल के बता दो कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये कहा हो कि किसी ने 3 तलाक दे दिया तो उसकी बीवी उसके लिए हराम। ये उन्होंने कहा, तो मैं बताओ, उमर रज़ी ने ये नहीं कहा कि हराम है, बल्कि उन्होंने कहा मैं अलग कर दूंगा या उन पे नाफिज कर दूंगा, यानी उनकी बीवी उनसे अलग कर दिए। तो बीवी हराम नहीं हलाल ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग कर रहे हैं क्योंकि यही तो सजा है। जैसे एक कैदी के लिए उसकी बीवी हलाल होती है, उसका घर हलाल होता है, लेकिन कैदी को वहां से अलग कर दिया जाता है। तो हाकिम जब अलग करता है, कैद का सजा सुनाते तो हाकिम ये नहीं बोलता है तेरी बीवी तुझ पे हराम हो गई है, तेरा घर तुझ पे हराम हो गया, भाई हलाल ही है, लेकिन तो मुजरिम से तू दूर रहे। तो ऐसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कानून का मतलब ये था, उनकी मंशा भी यही थी कि भाई हलाल, बल्कि उन्होंने मेंशन भी कर दिया ना, कह भी दिया कि इसमें गुंजाइश थी। यानी उमर रज़ी अल्लाह कह रहे हैं कि बीवी हलाल ही है, गुंजाइश है, लेकिन सजा ये दे रहा हूं कि नहीं रहने दूंगा साथ में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक हाकिम उसको इख्तियार है ना सजा देने का, तो उसको कानून बनाने का इख्तियार है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? तो मुफ्ती साहब जो आप इसमें तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हो ना, ये बड़ा ही खतरनाक इल्जाम है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अगर हराम कहा होता बीवी को, तब आप कहते उन्होंने कैसे जो है हराम नहीं कहा है, हलाल माना उसको, लेकिन सजा के तौर पर दोनों को जो है अलग कर दिया है। ये हराम करना नहीं है, सजा देना है, इसी को सजा बोलते हैं। सजा का ये मतलब होता है, आपको सजा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो एक जवाब हो गया, ठीक है। अब दूसरा जवाब ये है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला के कई ऐसे फतवा हैं जिसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोई फतवा दिया, थोड़ी देर के मान ले, तो सवाल ये है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला का और भी तो कोई फतवा है, बल्कि 20 फतवा ऐसे हैं जिसे आप यानी ये हनफी दुनिया बालायता करती हुई बिल्कुल भी नहीं मानते। ये अहनाफ उमर रज़ी अल्लाह तआला को नहीं मानते। मैं एक दो आपके सामने गिना भी देता हूं, उसमें आपका ये जोश कहां चला जाता? यानी उसमें आप उमर रज़ी को नहीं फॉलो करते, तो क्या आप लोग उन तमाम मामलात में उमर रज़ी अल्लाह तआला पर माअज़ल्लाह तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हैं? एक सहाबी की अजमत और ये जज्बाती बातें सिर्फ तलाक के मसले में ही क्यों, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला के दूसरे मसाइल आपके सामने पेश किए जाते हैं जिनको आप नहीं मानते, वहां आप ये क्यों नहीं कहते कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तहरीफ किया? माअज़ल्लाह, हिम्मत हो तो कह के बताओ। अब आइए मैं आपके सामने मिसालें देता हूं, कहां पेश करते हैं। मैं एक दो आपके सामने पेश करता हूं, जरा देखें। जैसे एक मिसाल ये है कि आप फ़िक़्ह हनफी में आप पाएंगे कि ये लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा के कायल नहीं है, जबकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मतलब कई रिवायतें मुस्तदरक हाकिम वगैरह में कि इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज से क़िराअत हो रही हो या सिरन, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह फातिहा पढ़ने के कायल थे। आप क्यों नहीं मानते? इस मसले में उमर रज़ी क्या आपके नजदीक माज़ल्ला तहरीफ किया? ऐसे ही सूरतुल हज में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा किया, आप क्यों नहीं मानते? ऐसे ही उमर रज़ी अल्लाह, सही बुखारी की रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, आप क्यों वाजिब बोलते? ऐसे ही चौथी मिसाल, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए, मुअत्ता की रिवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रज़ी का पांचवा फतवा ये है कि असर का टाइम कब है? एक मिस्ल साया हो जाए तो असर का टाइम है, अल-औसत इब्न मुंज़िर की रिवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज तमत्तु से मना किया, सही बुखारी की रिवायत है, छठी मिसाल है, आप क्यों नहीं मानते? सातवीं मिसाल, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मे वलद जो है लौंडी को खरीदो फरोख्त से मना किया, उनका फतवा सुनन वगैरह में सही सनद से साबित है, ये आप क्यों नहीं मानते इसको? आठवीं मिसाल ये कि उमर रज़ी अल्लाह तआला के नजदीक मफकूदुल खबर शौहर की बीवी, यानी वो बीवी जिसका शौहर मिसिंग हो, वो कितना वेट करेगी? उमर रज़ी कहते हैं 4 साल इंतजार करेगी, मुअत्ता की रिवायत है। ये हनफी दुनिया ये 100 साल क्यों इंतजार करवाती भैया? नौवीं मिसाल, उमर रज़ी अल्लाह तआला के नजदीक ये जो हलाला कहते हैं ना, हलाले को उन्होंने ये कहा है कि ज़िना कहा है, और सिर्फ ज़िना ही नहीं कहा,
बल्कि कहा है अल मुअल्ला वगैरह की सही रवायत है, मैं पूरी तखरीज आप मेरी किताब अहकाम तलाक में देख सकते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर मैं किसी को हलाला करते हुए पाया तो रज्म कर दूंगा, रज्म, सजाए मौत दे दूंगा उसको। आप लोग क्यों हलाले करवाते, हलाला सेंटर खोल के बैठे हो? यहाँ उमर रजी अल्लाह तआला याद नहीं आते, यहाँ उनका फतवा याद नहीं आता? आप हलाले सेंटर खोल के बैठे हो और उमर रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अगर मैं पा गया किसी को हलाला करते हुए तो उसे रज्म कर दूंगा। ये उमर रजी अल्लाह का 9वां फतवा जो आज की दुनिया नहीं मानती है, 10वां फतवा उमर रजी अल्लाह तआला का। वो कहते हैं कि बगैर वली के किसी ने शादी किया उसमें कोड़े लगेंगे। सुनन सईद मंसूर वगैरह की रवायत है। ये हनफी दुनिया कहते हैं बगैर वली की शादी, उसमें आपको याद नहीं आता कि उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा है? ये 3 तलाक के बारे में वो भी उनका फतवा नहीं। ये जो 20 चीजें मैंने आपको बताई वो बाकायदा फतवा है उनका, यानी शरई फतवा, फिक़ही फतवा है। इसमें ये हनफी दुनिया 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह तआला को किनारे करके रखी हुई है। ये लोग किनारे करके रखे हैं 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह के फतवा नहीं मानते। यहाँ कोई आपसे पूछे कि इन्होंने तहरीर किया, क्यों नहीं मानते दूसरे खलीफा को? आप 20 मसाइल में आप नहीं मानते हो और बड़े आप सहाबा के मानने वाले होंगे, और हमने एक मसले में जिसमें उमर रज़ी अल्लाह का फतवा भी नहीं है, वो सियासी उनका फरमान है, उनका जो फतवा हम उसको फतवा भी मानते हैं। उनका फतवा होती है कि तीन की होती है, फतवा हम मानते हैं, उनका मानते फतवा। और उनका जो सियासी कानून है कि इस बुराई पे कंट्रोल पाने के लिए कानून बनाया जाता है, हम उसको भी मानते हैं। आज भी अगर कोई ऐसा हाकिम हो, इस्लामी हाकिम हो, इस तरह का कोई कानून बना दे, अगर किसी ने 3 दे दिया तो हम उसको जो है ऐसा कर देंगे, अगर उस वक्त हालात ज़रूफ हो उसकी नजर में कोई इज्तिहाद करता है, हम उसको भी मानते हैं। तो हकीकत में इस मसले में 3 तलाक के मसले में हम उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ नहीं है। उनका जो फतवा है वो भी हम मानते हैं और कानून का जो उनका इख्तियार है वो भी मानते हैं। हम उसके खिलाफ आ गए भाई, आप लोग 20 मसाइल में उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ चले गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आप ये जज्बाती बातें नहीं करते। तो बहरहाल ये दूसरा जवाब था ये मुफ्ती तारिक साहब से कि आप जो सवाल कर रहे हो कि क्या तहरीफ है, कुरान और हदीस में तहरीफ होगी, उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसा क्यों कह दिया, तो आप इन 20 मसाइल में बताओ कि आप लोग जो उमर रज़ी को छोड़ के रखे हुए, तो क्या उमर रज़ी जो फतवा दिया था क्या कुरान में माज़अल्लाह तहरीफ का फतवा था? 3 तलाक के मसले में हदीस के पास कख भी नहीं है, समझ रहे हो? और ये जो लोग कहते हैं नबी ने हजरत रुकाना की हदीस पेश करते हैं, कारी खलील ने टीवी में ये भी हदीस पेश की हजरत रुकाना की, उसमें कि नबी ने एक मजलिस में कहा था कि वो उन्होंने साहबी ने एक मजलिस में दी थी तो आपने फरमाया वो एक हुई है। तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। बोलते क्यों नहीं? लंगड़ी लूली सनद है? अरे लंगड़ी लूली सनद तो आपके पूरे फिक़ह हनफी की, लंगड़ी लूली सनद तो आपकी है, आपके पूरे मसलक की सनद लंगड़ी लूली। आपने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो फतवा पेश करते हैं ना, उसकी सनद भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, सिवाय चंद के, यानी बहुत कम हिस्से का आप सबूत दे सकते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से साबित हो। बाकी जो इतना बड़ा आपने कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा फिक़ह हनफी के नाम पे, वो लूली लंगड़ी है। ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक उसकी सनद पहुंचती है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद पहुंचती है। अपना खुद का पूरा मजहब लूला लंगड़ा, और आप जो है अहले हदीस के मसले के बारे में करें, हदीस के बारे में करें कि लूली लंगड़ी सनद है उसकी। ये मुस्नद अहमद की सनद है जिस पे ये इशारा कर रहे हैं, मुस्नद अहमद की रवायत है। और उस रवायत को बताइए खुद ये लोग भी मान चुके हैं। मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ कि एक जो इनके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने भी जगह लिख रखा ना कि हनफिया ने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की रवायत को क़ुव्वत सनद की बिना पर तरजीह देकर तारुज़ रफा किया। दरस तिरमिज़ी जिल्द 3 सफ़ा 432 में आप देखेंगे। तो इसमें जिस सनद को इन्होंने कोट किया ये वही सनद है जो तलाक वाली रवायत की है, जिसको ये लूली लंगड़ी सनद कहते हैं। इस सनद को ये कई जगह मान चुके हैं, ये उलमाए अहनाफ इसको मान चुके हैं। बल्कि इसी सनद को दीगर अहले इल्म की बात करें तो देखिए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह कितने मशहूर बड़े मुहद्दिस हैं, फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 94 पे कहते हैं कि कज़ा वसल अहमद बिन हंबल वगैरह मिन तरीक़ मोहम्मद बिन साद अंदाउद बिन हुसैन अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास व इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन। ये इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह सेम उसी सनद को जो सनद मुस्नद अहमद वाली है उसको हसन बोल रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि वो लूली लंगड़ी सनद है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह ने सुनन दारकुतनी में बाकायदा लिख रखा है कि वसबाब हदीस इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाहिल अव्वल। ये बड़ी अहम चीज है। देखिए एक मसला क्या है कि अगर किसी जोड़े ने शादी कर लिया है, शादीशुदा जोड़ा है, शौहर है बीवी, और दोनों काफिर है, मुसलमान नहीं, अब दोनों अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो हदीस है कि उनका निकाह बाकी रहता है, उनको निकाह रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर मियां बीवी दोनों इस्लाम कबूल कर लिए तो नए सिरे से, भले चाहे तकदीम ताखीर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको नए सिरे से निकाह करने की जरूरत नहीं। ये जो हदीस आई है ना, ये उसी सनद से आई है जिस सनद से तलाक वाली हदीस है, और उस सनद को सब मानते हैं। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह कितने बड़े मुहद्दिस हैं भाई, उन्होंने सही है इनकी बात में नक़द किया, इतना बड़ा इल्ल का माहिर, वो कहता है सही बात वही है जो उस सनद से आई है। तो वो जो मुस्नद अहमद की सनद है, इमाम दारकुतनी जैसा इतना बड़ा नाक़िद माहिर इल्ल वो उस सनद को ठीक बता रहा है, इब्न हजर रहमतुल्लाह उस सनद को ठीक बता रहे हैं, इनके उलमा भी उस सनद को ठीक बता रहे हैं, और मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब को लूली लंगड़ी सनद लग रही है। तो बहरहाल बहुत सारे हमारी तलाक वाली किताब देखेंगे, मैंने दसियों अहले इल्म के अक़वाल नकल किए, मुहक्किकीन के, मुहद्दिसीन के, जिन्होंने इस सनद को सही करार दिया है, और जो कूड़ कबाड़ा इन्होंने लपेट कर रखा है सनद के साथ, वो सबको हमने क्लियर किया है। आप हमारी किताब में तफसील देख सकते हैं। तो बहरहाल ये लूली लंगड़ी सनद उसको बताना, हम इस तरह की बात करें तो हम इनके पूरे मजहब को कह सकते हैं कि पूरा मसलब लूला लंगड़ा। जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने फरमाया वो एक हुई है, तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। हाँ एक मिनट, लंगड़ी लूली यही इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी जन्म रखे, सही मुस्लिम में भी। तो ये इनकी जो आदत है ना लंगड़ी लूली, इन्होंने वहां भी ये लंगड़ी लूली करने की बड़ी कोशिश की। इसलिए हमारी किताब आप देखेंगे तलाक, तो बहुत ही डिटेल में हमने इस सनद जो सही मुस्लिम की सनद ना उस पर बहुत तफसील से, बल्कि शायद मेरी पूरी किताब में इतनी तफसील किसी और सनद पे नहीं है जितना सही मुस्लिम की सनद पर है। और इन चारों ने, एक नहीं चारों मसलक वालों ने मिलकर सही मुस्लिम की उस सनद पर जितने भी जो है कूड़ कबाड़ा इकट्ठा किया है वो सब सारी गंद हमने साफ कर दी। आप हमारी किताब पढ़ेंगे तो सारी तफसीलात हमने रखी थी। ये लूली लंगड़ी बोले, ये तो सही इनका बच्चे तो सही मुस्लिम की हदीस पर भी ऐसा बोलते हैं और ये बोलते भी हैं। तो बहरहाल ये ताजुब की बात नहीं है, ये मुस्लिम की हदीस के ताल्लुक से कहने इस तरह की बातें ये लोग सही मुस्लिम की सनद के ताल्लुक से भी कह चुके हैं, जिस पर उम्मत का इजमा है। आगे बढ़ते हैं। किसी ने भी इससे इस्तेदलाल नहीं किया, सही है ना, सब मोदी ने कहा ऐसा नहीं है, जो सही सनद से साबित है वो आपके खिलाफ। किसी ने भी इस्तेदलाल नहीं किया। अरे भाई अहद सिद्दीकी में तमाम लोगों का उसी पर अमल था। वो जो हदीस है कि नबी के दौर में ऐसा होता था, उसी मौके पर जो रिवायत फरमा रहे जो है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अहद रिसालत का एक तकामुल बता रहे, उस हदीस पर पूरा अहद सिद्दीकी में अमल हो रहा था। अहद फारूकी की इब्तिदाई 2 साल तक अमल हो रहा, और आप किसी ने अमल नहीं किया। और उसके बाद भी मेरा एक लेक्चर है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि हर दौर में 3 तलाक के एक होने का फतवा। ये हजरत फरमाते हैं कि किसी ने अमल नहीं किया। अरे भाई हर दौर में, यानी कोई दौर ऐसा नहीं है जिस दौर में अहले इल्म ने ये फतवा ना दिया हो, ये ना कहा हो
कि उस हदीस पर अमल न किया हो। चुनांचे मैं एक हवाला दे दूं जो इनके दुनिया हनफियत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बल्कि अगर शायद ये कहा जाए कि बड़े मुहद्दिसीन में इकलौते मुहद्दिस है तो शायद गलत ना होगा। वो कौन है? इमाम तहावी रहमतुल्लाह। हनफी दुनिया में इनसे बड़ा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। ठीक है, इमाम तहावी रहमतुल्लाह की किताब है शरह मानिल आसार, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 55। उसमें क्या फरमाते हैं? ये हदीस निकल करते हैं, वही जो मुस्लिम की रवायत है ना, सेम वही हदीस नकल करते हैं कि अन सलास कानत तुजल वाहिद अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सलास मिन इमारत उमर। ये रवायत मतलब वही सही मुस्लिम वाली कि अहद रिसालत में, अहद सिद्दीकी में और अहद फारूकी के इब्तिदाई सालों में, इब्तिदाई अरसे में 3 तलाक एक होती थी। तो कहते हैं काला अबू जाफर, इसमें क्या इमाम तावी कहते हैं फज़हब कौमुन इला अन रजुल इदा तलक़ इमरातहु सलास समान। तो एक कौम का यानी उलमा की एक जमात का कहना है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे फ़क़द वक़अत अलैहा वाहिदा, तो वो एक ही तलाक वाक़ई होगी। इदा कानत फी वक़्त सुन्नत, यानी अगर सुन्नत के मुताबिक दिया है तो वो एक ही होगी। और सुन्नत क्या वदालिका अन तकूना ताहिरन फी गैरि जमाइन, सुन्नत ये है कि तोहर के हालत में तलाक हो और हम स्त्री ना हुई हो। वहतज्जू फी ज़ालिका बिहादिल हदीस, ये अल्फाज है वहतज्जू। इमाम तावी कह रहे हैं कि एक कौम का फतवा ये है कि किसी ने एक साथ 3 तलाक दिया, मान एक साथ 3 तलाक कौन कह रहा है? इमाम तावी। जाओ, यानी वो हदीस ये कह रहे थे ना बीच में शुरू में कि तुम 3 का एक साथ कहां से ले आए? ये इमाम तावी भी ला रहे हैं। ये इमाम तावी भी एक साथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी हदीस से इस्तेमाल हुआ। जाओ उन पे बरसो कि कैसे बोल दिया उन्होंने, क्यों नहीं कहा कि हदीस में तहरीफ हुई? उन्होंने कहा कि एक जमात का ये फतवा है, ये कहना है कि किसी ने 3 तलाक दे दिया एक साथ तो एक शुमार होगी। वहतज्जू बिहादल हदीस, इन लोगों ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है। और मुफ्ती साहब कहते हैं कि किसी ने इस हदीस से इस्तेदलाल ही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। जारी है वो हदीस, सही सनद वो है जो इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में जिक्र की है। उसमें आता है कि उन्होंने एक तलाक की थी, ताकीद की नीयत से उस लफ्ज़ को 3 दफा दोहराया था। तो नबी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी नीयत एक ही थी? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया कसम उठा सकते हो? फरमाया हाँ कसम उठा सकता हूँ। कसम उठाया तो वो थी, जैसे हम कहते हैं ना सांप सांप सांप, एक होता है लेकिन उसको दोहराते 3 दफा है। तो उसमें कसम इसी वजह से नबी ने उठवाई है कि भाई 3 दफा दी है। तो असल जो सही सनद है वो छोड़े जाते हैं और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। तो इसलिए बहुत बहुत उल्ट पटांग किया इसमें पहले लोगों ने। नहीं उल्ट पटांग देखिए, इन्होंने उल्ट पटांग किया। देखिए आप हमारी आका में तलाक वाली किताब जाकर देख लीजिए, हमने इसकी सारी सनदें, ये जो मुस्लिम की किताब है हदीस रुकाना, इसकी एक सनद भी एक तरीके में नहीं छोड़ा, इसके सारे तरीके इकट्ठा कर दिया, एक लाइन से लगा दिया और पूरा कंपेयर करके हमने दिखा दिया है कि रावी कहां गलती कर रहा है, कहां गलती नहीं कर रहा है। ये झूठी बातें बयान कर रहे हैं कि वो ताकीद का मसला था, ये मसला, ये सारी बातें मन करते झूठी बातें। ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात वो है जो मुस्नद अहमद में, उसकी सनद सही है, उसकी सनद को मुहद्दिसीन ने सही कहा, उसकी सनद को मुहक्किकीन ने सही कहा, और बाकी जो रवायत है उसकी सनदों का क्या हाल है ये सारा हमारी किताब में जाके देख रहे हैं। तो ये उल्टा बात कर रहे हैं ना, झूठी रवायतें, मनगढ़ंत रवायतें, उनको कहते हैं कि उसको बयान नहीं करते, और जो सही रवायत है उससे ये नजरपोशी करें। तो मुस्नद अहमद, और ये ऊंचे दर्जे की किताब भी है, मुस्नद अहमद ऊंचे दर्जे की किताबों में आती है, बल्कि ये जो है जो कुतुब सित्ता है ना उससे भी आली सनद होती है इसमें। और 4 इमाम में यही तो एक मुहद्दिस है जो सबसे ज्यादा हदीस लेकर है। मुहद्दिस इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी है, मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी है, लेकिन ये सबसे बड़े मुहद्दिस है, सबसे ज्यादा हदीस इकट्ठा करने वाले इमाम अहमद रहमतुल्लाह, उनकी किताब में रवायत मौजूद है। उनकी किताब से हट के कहते हैं नहीं, जबकि इमाम शाफी को मुस्नद है ही नहीं, लोगों ने इसको जमा किया, इकट्ठा किया। इमाम शाफी को खुद की लिखी भी नहीं, लोगों ने तरतीब दिया। वो जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह की किताब है हदीस की, ऐसा नहीं है अपनी सनद से, लेकिन ये जो मुस्नद शाफी जो मरतब की गई वो लोगों की मरतब की हुई है, इकट्ठा की हुई। बहरहाल कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी सही रवायत मौजूद नहीं है कि वो तकरार के लिए था, दोहराने के लिए था, ताकीद के लिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा अगर होता कि किसी ने तकरार के लिए अगर 3 बोल दिया तो उमर रज़ी अल्लाह का कानून उसके बारे में था ही नहीं। जो कहा जाता ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक होती, तो उससे ये मुराद नहीं है कि वो तकरार वाली बात थी। तकरार वाली बात वो आज भी है। आज भी अगर कोई बोले कि भाई नहीं वो तो हमने एक ही बोला था, ऐसे दोहरा दिया था, तो उसको कोई नहीं जो है 3 शुमार करेगा। वो तो मसला नहीं, वो तो मुख्तलिफ मसला ही नहीं है, किसने इसे दोहरा दिया, ताकीद के लिए बोल दिया। असल मसला ये है कि बाकायदा 3 जो है तलाक बोला, और ये रवायतों में बाकायदा सराहत है कि अदद नजूम बोल रहा है। ये क्या है? ये तकरार है, ताकीद है। यानी ऐसे ऐसे अल्फाज के ताल्लुक से उसकी जो है तशरीहात आई है, रवायतें आई हैं जिन 3 तलाक को जो है एक शुमार किया था, तो उसमें ताकीद की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ते हैं। छोड़े जाते हैं और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। मजहूल बहुत बहुत उल्ट अरे पटांग भाई किया इसमें। हकीकत में मजा आएगा, एक बार हमारी किताब पढ़ के देखिए। ये मजहूल रावी उसमें, ये मजहूल रवायत रुकाना की वो रवायतें जो मुस्नद अहमद के बरखिलाफ ये लोग लाते हैं ना, उसमें मजहूल रावी है। और ये जो मुस्नद अहमद की सनद में उसमें एक रावी भी मजहूल नहीं है। ये मुफ्ती साहब को हमारा चैलेंज, बहुत चैलेंज करते हैं ना, चैलेंज मुस्नद अहमद की सनद में जितने रवात हैं इनके बारे में आप दावा करके बताएं कि वो मजहूल है। और आप जो रुकाना की बात लाते हैं उसमें तो मजहूल रावी है। जाके हमारी किताब पढ़ लें, हमने दिया भी। अगर आपको पढ़ के समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह उसको पेश भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल दे सकते हैं कि कौन कौन सा रावी उसमें मजहूल है। लेकिन मुस्नद अहमद की रवायत में कोई एक रावी निकाल के बता दे